आपको दिख रहा है कि आप लोग बैठ जाओ ऑटो में यहाँ से पूरा साइड में पीछे वालों को कैसे दिखेगा तभी इतना क्वाइट हो ना अभी बात कर सकते हो ना Firstly, thank you so much, my dearest Farah Khan. She is such a sweetheart and she's so jovial, she's so happy personality. You know, suddenly there is such a beautiful aura. Everybody is waiting for you since morning and looking forward. I was about to come at 12 o'clock. I'm still 5 minutes early. You are not time. You are not time to save your time and ask me to come early. And you know, it's such a sweet thing. I just called Farah and I said, we're doing this little thing. I would love to have you come and inaugurate and our robot, and it will be great to have you around. And with nothing else, she just told me, okay, tell me the time and the place. And she is here today. So please, a big round of applause for her. So I know Masuma said she was on Indian Idol 1. So we have been friends and of course. And I know Farah since she was directing a song for Big Boss, Yes Boss. But she was so busy with her work that we were all there in the background doing something else. And we were not so, we didn't know knew each other so personally then. But from Indian Idol, there's a bond that we've established. There's so many similarities between our lives and the kind of dynamic woman that she is. She's magnetic, and I'm so happy today that she is here. I'm just checking your loyal fans. Tell us something about doing everything. How are you managing your time? Like you're running around now from here, she's going to go for a shoot. And how do you do all this and how do you still remain so beautiful? We all know that women are very good at multitasking. Sorry, doctors. Women doctors are better at multitasking, I'm sure. So we all, I mean, I wore the outfit I'm supposed to wear for the shoot. I just removed the jacket and wore it. Time management is utmost important, so let's not waste any time and let's inaugurate the main star of the event. Not Deepak. First of all, a warm welcome on a Sunday. Everybody is coming over here, and I've been waiting for Farah to come. And Farah is not late. Yeah, Farah is not late. She's before time. So our period of anticipation has been reduced. I'm sure everybody is excited to come, not for the report, but more to see Farah. Everybody is a fan of yours. Yesterday I was told don't come 10 days. Who is the doctor who said that? Huh? You? So who cook food at home and that way? Today is Sunday and children are at home. Here we have similar for our children also. All our children are now heading towards the universities, grade 12. So I don't know how she manages these 3 children. They manage you? They manage our husband is there. Want to say something? So as you heard all our esteemed orthopedicians speaking, this is something which was non-existent in the suburbs, and Critical takes the lead in bringing the technology to all our orthopedicians, to all our community. Okay. All of us know that joint pains is one of the commonest problems with aging, and having a technology which will help you to precisely cure it is something which is warmly welcome. Farah is putting up her hand, so maybe she will literally inaugurate it in the OT. Huh, Farah? I don't need a knee replacement as of now, but yeah, my legs pain a lot. Doctor, if you can help me afterwards, please let me know. So that's the comfort with Farah. She doesn't come prepared. She knows how to steal the show and take it to the next level. That impromptu-ness is amazing. All your directions to all the who's who in the industry. Directing SRK must have been an easy thing. Oh, actually, that is the easiest thing. Yeah. Directing delivery is the first thing. We can't remember any line 2 minutes later. Yes, I know that. And you know, it takes a lot. Like हम सभी show देखते हैं फराह का, and we love it. And you know, YouTube पे she's been the record breaker till now, and
the way she carries that show, but I know the मेहनत that goes behind it. दिलीप को मतलब imagine हम में से किसी एक है को कुछ train करना पड़ता है जब घर के काम के लिए ही तो कितनी बड़ी बात होती है. Now that she does and he's made her a hero and it's also empowering one life. Farah, what you've done is big round of applause and hats off to Farah. She's made Dilip a superhero for our country, which is so rare. बहुत टाइम लोग selfish हो जाते हैं कि I will steal the limelight, I will be this, but she's selflessly, and I know Farah. Not only Dilip, many other things that she does selflessly, like today that she is here. And also from Criticare, I would like to say that when there is a knee problem for her and there are issues, physical issues to any patient, it is not just the medical issue, it is also a social issue, a dignity issue. You know, sometimes बूढ़े लोग थोड़े लिंक करके चलते हैं, थोड़ा तकलीफ होती है. It's all not really nice for the person who's going through it and also for the family sometimes. So we at Criticare, we try and involve ourselves every time with technology as well as lovely hands that we have for our team to ensure that we give good life and dignity to all our patients so that they can walk comfortably and like he walked out. So they can walk comfortably, they can recover comfortably without too much ado. So yes, Deepak will first tell you about more about this. I think everybody has come on stage that better experts than me in deciding which robot is the best. So for everybody's knowledge, there are many robots in the market. Okay, we had a complete team reaching out and evaluating which is the best robot, and this came out to be the winner, which is able to do all kinds of joints, as such with hip, unilateral, redo. So all these things in one robot, one technology, so you don't have to keep on learning multiple robotic ways to try and get good results. So from the orthopedician point of view, hopefully once you settle down using this, it should be quite good. And it's using the Burr technique, so your ligament injury and all is also going to be very minimized. Patients are going to walk back quickly. All of you are very good in conventional also, so I'm sure that your patients are walking back the next day even in conventional. But degree of implant placement would improve, the precision would improve, and hopefully the results will, the data shows the results are definitely better using robotics. So I think it could be a good step for the entire community, whether doctor community or patient community, to give the best to our patients. That is why we have all got educated and we are able to achieve that purpose. Presence of Farah makes it even more visible, because today visibility reaching out to the community remains one of the key things. Just blowing a home trumpet doesn't get you the type of service you want to reach out to people. So Farah's presence will do that. And I will blow your trumpet for you. Criticare trumpet will be blown everywhere because first joint replacement is free, huh? Both I don't have to do. And from a podcast, I keep on remembering the short in Welcome, where one of the heroes, Sunil Shetty, refuses to become the hero, and the director says, "Chal, अभी तुम hero बनना पड़ेगा." तो वैसा she has made Dilip, चलो किसको भी मैं hero बना देता Now the हूँ. third hero is here. कर लो उद्घाटन We'll try our best. Let's see it. ओपनिंग You all have a name for it? Huh? Ori? चिट्ठी बाबू अरे रजनीकांत का जो रॉबर्ट Ori, na? I heard Ori. Book the robot will be party every night. They decided a slogan also, Kori with the choreography. So you are wearing so many hats. What to address you as choreographer or director, it becomes very complicated. Just one. Also, one more thing, we are only calling her Farah. We can't call her Faraji because Faraji sounds very, very old. That is very true. She's young at heart. She's always going to be young. Why you have to say I'm hard? गौरी जी का उद्घाटन कर लो ही में आपने ऑलरेडी बोल दिया कि आपको मैं नहीं बोलूं. Chal, I think they are waiting to. Can we pause it? तो लापाई है रोबोटिक Criticare. जी Criticare
बहुत बड़ी बात है कि क्रिटिकेयर एशिया जो कि कुर्ला में है, I've got their third robotic surgeon over here thanks to Dr. Masuma and Dr. Deepak, जो robotic से joint surgery, knee replacement, will be better to tell hip replacement. It's fantastic to have in any hospital. मैडम रोबोट के आने से डॉक्टर की पेशे के ऊपर कुछ आन जाएगा? देखो कैमरा नया लूंगी तो क्या डायरेक्शन कैमरा थोड़ी करेगा, डायरेक्टर ही करेगा ना। तो जैसे ये रोबोट है वो सर्जन ही सर्जरी करेगा, लेकिन इट्स अ बेटर टेक्निकल टूल फॉर द सर्जरी। सर्जरी तो आई थिंक डॉक्टर सर्जन विल बी मोर क्वालिफाइड। डॉक्टर शेट्टी जी, आपने रिसेंटली शेट्टी मैम का जो फिल्म स्टार है शिल्पा शेट्टी, उनकी बेटी का आपने ऑपरेशन किया था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये रोबोटिक तो जैसे अभी मैडम ने बताया, अभी आप सब लोग कैमरा यूज कर रहे हैं, बट सब कैमरा का अलग अलग रिजोल्यूशन रहेगा। कोई 3K 4K, कोई 8K रिजोल्यूशन रहेगा। वैसे ही हमारे सारे रोबोट्स जो है उसके प्रिसीशन अलग अलग लेवल के होते हैं। जैसे आपका अच्छा कैमरा एक अच्छा पिक्चर निकाल सकता है, वैसे ही हमारा एक रोबोट अगर अच्छे से काम करेगा तो एक बहुत बढ़िया रिजल्ट पेशेंट को दे सकता है। ये यहाँ डॉक्टर को रिप्लेस करने नहीं आए हैं, डॉक्टर को एनहांस करने आए हैं। देखिए रोबोट तो रोबोट होता है, लेकिन अगर किसी जगह पे रोबोट जहाँ यूज करती है अगर वहाँ पे फेलियर होती है तो शायद कुछ लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे रोबोट अगर फेलियर होती है तो एक इंसान की जान जा सकती है। तो इसके फेलियर के बारे में कितने चांसेस है? ये इसीलिए वो हाईएस्ट प्रेसिशन वाला रोबोट लेके आए हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आपको जो सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन, इनफाइनाइट ओपिनियन आप दुनिया के एक साथ ले सकते हो कि व्हाट इज द बेस्ट वे आपके पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। आप खुद तजुर्बेकार हो, ऊपर से ये AI द्वारा आपको गाइड करेगा कि और प्रिसीशन कैसे करें। एंड इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम कहते हैं ना, इसीलिए आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी दी जाती है। स्मिथ एंड नेफ्यू जो बहुत रिनाउंड कंपनी है, ये उनका रोबोट है। तो ये टेक्नोलॉजी इन लोगों ने बहुत लोगों पे टेस्ट करके, चेक करके, प्रिसिशन के साथ बनाई है। इसीलिए हमने ये इंस्टॉल किया है। बहुत सारे रोबोट्स अवेलेबल हैं और बहुत शायद सस्ते भी होंगे, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी पे नहीं जाते क्योंकि हमको भरोसा जहाँ है, जहाँ पे प्रिसिशन देखकर ही उसको मार्केट में लाया गया है, हमने वो रोबोट इंस्टॉल किया। देखिए कुर्ला में आपका 31st इंस्टॉलेशन और 3rd इन मुंबई है। कुर्ला एक मध्यम वर्ग एरिया है जहाँ पे गरीब लोग, मीडियम क्लास के लोग रहते हैं। किस तरीके से आप लोग कुछ रोबोट से ऑपरेशन हो गए तो उसके रेट भी बढ़ जाएंगे, उसके लिए कुछ आप लोग ने कुछ ये किया है? हर डॉक्टर समझता है कि हम लोग एलिटिस्ट प्रोफेशन नहीं है। सब वैरायटी ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटा को कोई भी डॉक्टर को या कोई भी हॉस्पिटल को इलाज करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पैकेजेस है कि जहाँ जनरल वार्ड में भी पेशेंट आए, आपके घर पे कोई काम करने वाला भी आए, तो वो भी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है, अफोर्डेबल प्राइस पे कर सकता है। एंड ये ध्यान में रख के ही किया हुआ है, ये खाली रिच के लिए नहीं है, ये सबसे लोएस्ट अर्निंग पर्सन को भी अफोर्ड हो सकता है, ऐसे टाइप की टेक्नोलॉजी। Can we say from Dilip to Farha? No, Dilip, from Farah to Dilip it will become. उल्टा है। अगर घर में भी अगर रोबोट आ जाए तो दिलीप की कमी होगी कि? दिलीप किसी को टिकने देगा नहीं इधर से। एक दिन वो मेरे को भी निकाल देगा, मेरे को लग रहा है वो घर टेक ओवर कर लेगा। नहीं, मगर अगर मैं उसके लिए अच्छा मिक्सर ग्राइंडर लाऊं, अच्छा माइक्रोवेव, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स लाऊं, तो उसकी डेफिनेटली उसके स्किल बढ़ेगा ना, खाने का वैसा ही है ये। फरा जी, आगे फ्यूचर में अगर कोरियोग्राफी करने के लिए भी कोई रोबोट इंट्रोड्यूस हो जाता है तो आपका क्या प्लान है? भाई अभी एक्टर्स तो रोबोट्स हो ही गए हैं, तो कोरियोग्राफर को भी कर दो। मैं तो बोलती हूँ बेस्ट है, रोबोट्स से भी कोरियोग्राफी करा दो। इस क्वेश्चन यहाँ पर है डॉक्टर, आपके पास और भी रोबोट्स हैं और ये जो है ये लेटेस्ट मॉडल है, तो दूसरों में और इसमें क्या ऐसा मेजर फर्क है जो कि आप बोलना चाहेंगे? दूसरे भी बहुत लेटेस्ट है क्योंकि 2-3 साल में लिए हुए हैं, पर टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव होते रहती है, तो ये रोबोट और भी प्रिसाइज हो जाता है। बाकी के उससे थोड़ा 19-20 और बेटर टेक्नोलॉजी आई हुई है। तो हमेशा हम लोग एज अ हॉस्पिटल ये देखना चाहते हैं कि जो भी बेस्ट है पेशेंट के लिए, हम लोग पे एक भरोसा रख के आते रहते हैं पेशेंट, तो हमारी जिम्मेदारी है कि टेक्निकली उनको जो बेस्ट चीज़ें हैं वो अवेलेबल कर दें। और ये रोबोट की खासियत है कि ये कहीं पर भी जा सकता है, तो जहाँ पर भी जो पेशेंट की जैसी नीड है वो हॉस्पिटल में वो लेके जा सकते हैं एंड उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। सर कोरी 2.0 ही क्यों नाम दिया गया इसको? नहीं, ये नाम कंपनी से आया, कंपनी से आया।
और वैसे ये रोबोट ना संडे को छुट्टी मांगेगा ना वैनिटी वैन मांगेगा ना ओवर टाइम मांगेगा, तो बेटर है ना ये। तो मैं बोलती हूँ फिल्मों में भी ले आओ। तो ये जो रोबोट है कोई अपना, ये जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के दौरान टाइमिंग में भी कुछ करेगा? मतलब जैसे कि अगर किसी ट्रीटमेंट में होने के बाद में कम समय में जो रिकवरी होता है तो उसमें कुछ असर जाए? आप सोच रहे हो ना अपना नी रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ, बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया सवाल था आपका। सो रोबोटिक प्रिसीजन से सिर्फ प्रिसीजन नहीं मिलता है, पेशेंट का रिकवरी भी बहुत फास्ट होता है। तो ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में एक्सेप्टेड इसीलिए है क्योंकि सर्जरी से जो पेन होता है पेशेंट को, वो किस टेक्नोलॉजी से वो पेन कम होता है। पेन कम होने की वजह से लोग एक्सरसाइज अच्छे तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से रिकवरी शॉर्ट होता है। इनफैक्ट हॉस्पिटल के लिए तो नुकसान है क्योंकि पहले हॉस्पिटल में 7-7 दिन पेशेंट रहते थे मैडम, अब तो 2 दिन में पेशेंट घर चले जाते हैं। तो अब 2 दिन में पेशेंट अगर घर जाएगा तो आप ये सोच ही सकते हो कि तो हॉस्पिटल को तो 5 दिन का बेड चार्जेस का लॉस हुआ है। बट हॉस्पिटल ऐसे नहीं सोचता है। हॉस्पिटल ऐसे सोचता है कि हम हमारे पेशेंट्स के लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि क्या मध्यम वर्गीय और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए हेल्प करेगा, तो डॉक्टर दीपक नाम जोशी सर का ये पहला रोबोट नहीं है, तो हैंडलिंग है इनके रोबोट का। इससे पहले 2 रोबोट हमने अंधेरी और मलाड में जो इंस्टॉल किया है, अगर उसका डेटा निकालोगे आप तो सबसे ज्यादा अगर उसी का किसी ने उपयोग किया है तो वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ने ही उपयोग किया हुआ है, क्योंकि उसका बजट ऐसा टेलर मेड किया हुआ था कि 4 जगह पर जाने के बाद लोगों ने रियलाइज किया कि ये डॉक्टर ने बनाया हुआ हॉस्पिटल है, क्योंकि ये खुद एक डॉक्टर है तो वो समझते हैं सब कुछ। बिजनेसमैन नहीं है, कॉर्पोरेट हाउस नहीं है, खुद डॉक्टर होने की वजह से वो थॉट प्रोसेस उनमें आती है कि लोगों को क्या जरूरत होती है, और उस हिसाब से हमने सारा चीज बहुत ही अफोर्डेबल इकोनॉमिक प्राइस में। और मैडम ने बहुत बढ़िया चीज बताया, हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ हम ट्रीटमेंट नहीं देते, डिग्निटी पे भी ध्यान देते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लोग जब हमारे पास आए वो सर ऊंचा करके बाहर जाए। और यही संतोष हियर आई ऐड, जैसे हमारे 4 हॉस्पिटल हैं जुहू पे, अंधेरी ईस्ट में, मलाड में और कोयना में। तो जुहू का जो हॉस्पिटल है वहाँ एक साइड हमारे यहाँ सारे फिल्मी स्टार्स आते हैं, फराह जैसे और सारे कुछ तो फिल्मी स्टार्स आते हैं, बिजनेस मैन आते हैं, ऑन्टरप्रेन्योर्स आते हैं। ऑन दी अदर साइड जू गई है जो सोशो इकोनॉमिकली बहुत नीडी कम्युनिटी होती है। तो ऐसे नहीं कि हम उनको ट्रीट नहीं करते, उनको भी हम वही ट्रीटमेंट देते हैं जो हम जू के इस साइड देते हैं, जो हायर लेवल को देते हैं। तो इस तरह का हॉस्पिटल है क्रिटिकल हॉस्पिटल, जहाँ हमारे लिए पेशेंट होता है, हर जिंदगी होती है और हमको उनको ट्रीटमेंट देना होता है। अगर किसी की हम हेल्प कर सकते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। देखो, हॉस्पिटल इज मेड बाय द डॉक्टर्स and by the people behind it, and I don't know anyone better than Dr. Masuma and Dr. Deepak. I know them for years. They selflessly do work from COVID times to before also. मैं तो ज़्यादा COVID time से I know how much they've helped. So my trust is in both of them. तो अगर इन्होंने बोला रोबोट अच्छा है तो रोबोट अच्छा है। कोविड के टाइम पे बहुत हेल्प की थी क्रिटिकल। we stay at Kurla and we know that. That's what hospitals are That's the best made one. by the people and the doctors. Even about who run them. Santosh Shetty sir. सर टेक्नोलॉजी के आने से हमेशा देखा जाता है कि टाइम कहना से चाहूँगा कि बाकी सब प्लेटफॉर्म पे इंसानियत की बातें की जाती है। हॉस्पिटल और डॉक्टर्स एक पेशा है जहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। हमारे लिए हर पेशेंट इम्पोर्टेंट है, उनका औधा क्या है, उनका सक्सेस क्या है, वो क्या करते हैं, कौन से मजहब से आते हैं, जो सब बाकी के यहाँ निकाल देने की कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ हमेशा से निकला हुआ ही है। हम लोग किसी को उनका मजहब नहीं पूछते हैं, किसी को उनकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग नहीं पूछते हैं, सेलिब्रिटी है नॉन सेलिब्रिटी है, हमारा दिल लगा के काम करना सब में सेम रहता है। कॉमनली जो रिच होता है उसको सिंपल टाइप ऑफ बीमारियां होती है और जो पुअर रहता है उसको मोर कॉम्प्लेक्स बीमारियां होती है। तो हम लोगों को पुअर में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है एंड हम लोग उतनी तत्परता से, उतने ही डिसिप्लिन से जो पुअरेस्ट पुअर है उसको बचाने की कोशिश करते हैं एंड उसको बचाने के बाद जो हम लोगों को आनंद मिलता है, आई थिंक दैट इज वर्थ ऑल द मनी इन द वर्ल्ड। ये सर टेक्नोलॉजी के आने से टाइम सेविंग जो है वो होता है, तो कोरी के आने से कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम सेविंग होगा, क्या बताना चाहेंगे उसके? तो सबसे पहली बात तो जो टाइम सेव होगा वो ओटी के अंदर होगा, क्योंकि सर्जरी
जो पहले 1.5 घंटे का होता था वो 45 मिनट्स का होगा। तो सिंपल लॉजिक है, अगर कोई पेशेंट एनेस्थीसिया के अंडर 1.5 घंटा है, अब वो सिर्फ 45 मिनट्स रहेगा, तो उसको बोलते हैं रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया। वो रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया कम हो गया, वो ओटी से जल्दी बाहर निकले, उनको पेन कम होगा, तो उनका रिकवरी फास्ट होगा। वो हॉस्पिटल में कम रहेंगे, उनको दवाई कम लेना पड़ेगा। अगर उनका रिकवरी जल्दी हुआ तो सोसाइटी में, कम्युनिटी में वापस से जल्दी भाग ले पाएंगे। यानी अगर कोई नौकरी छोड़ के हमारे पास आ रहा है, पहले अगर 2-3 महीने का छुट्टी लेना है तो उसको 2-3 महीने का उसका घर का कमाई बंद हो गया, बट अगर अभी 4 हफ्ते में ही वो वापस से अपने काम पे जा सकता है। तो ये सारे छोटे छोटे चीजें एक एक करके ऐड हुआ है। ओटी के अंदर कम समय, ब्लड लॉस कम होना, जख्म छोटा हो जाना, पेन किलर की कमी हो जाना, रिकवरी फास्ट होना और हॉस्पिटल से जल्दी घर चले जाना। हम जानते हैं कि अगर एक पेशेंट आया तो उसके साथ 3 रिलेटिव भी आ जाते हैं जो छुट्टी लेके आते हैं, तो इनको भी अपने काम पे जाने को, तो ओवरऑल ये बेनिफिट है। और ये ग्लोबली हो रहा था, ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार हो रहा है, ये ग्लोबली हो रहा था, बट उसको इंडिया में लाने के लिए एक जिगर लगता है, क्योंकि ये सब कॉस्टली इक्विपमेंट है और सबकी बस की बात नहीं है। कॉर्पोरेट्स के लिए तो बहुत ही आसान है ये, बट एक डॉक्टर और डॉक्टर फैमिली के लिए ये करना बहुत मुश्किल है, और एक बार नहीं 3 बार करना। और यही क्रिटिकेयर एशिया का स्ट्रेंथ है कि हर जगह पर पेशेंट फर्स्ट पॉलिसी, कि पेशेंट पहला देखेंगे, बाद में सब कुछ। और जैसे आपको अभी बताया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पेशेंट या कोई भी डॉक्टर हो, जनरल वार्ड में हो या सिंगल रूम, हमारा तो ट्रीटमेंट मैडम सेम है, दवाई सेम है, रोबोट सेम है, बिलिंग अलग होगा। तो मैं हमेशा हमारे पेशेंट को बोलता हूँ, तो जो बेड चूज करते हैं ना, वो पेशेंट अपने सुविधा के हिसाब से चूज करते हैं, ट्रीटमेंट के हिसाब से नहीं। तो हमेशा बेड चॉइस जो भी होगा आपका, वो आपके सुविधा के हिसाब से होगा। ट्रीटमेंट तो हर एक बेड में सेम होने वाला है। So that is why there is no differentiation at all when it comes to treatment. लास्ट क्वेश्चन, कोरी 2.0 के बारे में आप बताइए कि ये जॉइंट और हिप और उसके अलावा और क्या क्या कर सकता है? So ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। नॉर्मली हर एक रोबोट का, जैसे आप iOS एप्पल का मोबाइल यूज करोगे तो उसमें खाली iOS प्लेटफॉर्म चलेगा। अगर आप सैमसंग का मोबाइल यूज करोगे तो उसमें खाली एंड्रॉइड का प्लेटफॉर्म चलेगा, ये आप सब जानते हैं। कोडैक का अगर आप कैमरा यूज करोगे तो कोडैक का फिल्म यूज कर सकते हो। ऐसे ही हर एक रोबोट अलग अलग चीज में उसका इंपॉर्टेंस है। कोरी इज अ कंप्लीट पैकेज, यानी जो जॉइंट के रिप्लेसमेंट सर्जरीज होते हैं उसमें एक होता है नी रिप्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। फिर एक होता है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, यानी सिर्फ वही भाग चेंज करना जो खराब हुआ है, उसको बोलते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। यानी नी रिप्लेसमेंट में 2 हो गए। फिर होता है हिप रिप्लेसमेंट, और एक होता है जिसको बोलते हैं रिविजन सर्जरी। अगर किसी का सर्जरी हुआ है और वो बराबर नहीं हुआ है, उसको वापस से करना, तो इसको बोलते हैं 4 प्लेटफॉर्म, 4 एप्लीकेशन, और ये कंप्लीट एप्लीकेशन अभी कोरी के साथ है। तो हो सकता है कोई एक रोबोट है बट उसमें सिर्फ नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, बट हमारा ये जो रोबोट है इसमें सारे टाइप के जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो सकते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो इस इनिशिएटिव के लिए जो आप